નરેશભાઈ, અમુક વિદ્યાર્થીઓ આ પ્લેટફોર્મ પર જોડાશે અને બીજા લોકો ફેસબુકમાં લાઈવ હશે. ઓકે જી. રાજેશભાઈ નું કેવું એમ હતું કે આ ગ્રુપમાં એટલી મર્યાદિત સંખ્યા છે કે અહીં જ બધા જોડી જશે, વાંધો નહીં આવે. હા હા, અને જેમ કે અમુક વિદ્યાર્થીઓ આમાં જોડાશે અને અમુક વિદ્યાર્થીઓ ફેસબુક પર હા, લાઈવ હશે. અમુક સીધા ત્યાં જોડે. જી ઓકે જી. ઓકે, બરાબર. આપ એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દેજો કે ઓડિયો બધા ઓફ રાખે. બધા બંધ રાખે, બરાબર છે, જી જરૂર. જી. તમે કહેશો પછી આપણે શરૂઆત કરશું, બરાબર? સુનિલભાઈ, મયુરીબેન આવી ગયા છે. નમસ્તે નરેશભાઈ. નમસ્તે, કેમ છો? જી મજામાં. I think we can start. ચાલો, વેલકમ. હા. ઓકે, જરૂર. નમસ્કાર મિત્રો. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સુરત અને રિસર્ચ ફોર રિસર્જન્સ ફાઉન્ડેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલ આ વર્ચ્યુઅલ મીટમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ભાષાઓના જે સંશોધાર્થીઓ થવાના છે એમના આ ગ્રુપમાં આજનું આ પ્રથમ વ્યાખ્યાન થવા જઈ રહ્યું છે અને વક્તા તરીકે ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર મયુરી ભાટિયા. છેલ્લા 27 વર્ષથી શિક્ષણ અને સંશોધન સાથે સંકળાયેલા મયુરીબેન સંસ્કૃત વિષયના જ્ઞાતા છે. 80 થી વધારે એમના સંશોધન પત્રો પ્રકાશિત થયેલા છે. વિવિધ યુનિવર્સિટીઓના સત્તા મંડળોમાં એ મેમ્બર તરીકે સક્રિય છે. એમના માર્ગદર્શન હેઠળ 14 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને પીએચડી અને 7 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને એમફિલની ઉપાધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તો આવા સમર્થ વક્તા અને સંશોધક મયુરીબેનને વિનંતી કરીશ કે આવો અને અમારા વિદ્યાર્થીઓને સંશોધનમાં પ્રવેશ વેળાએ કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કેવા કેવા એરિયા હોઈ શકે અને શું પદ્ધતિ હોઈ શકે એનું 40 મિનિટમાં વ્યાખ્યાન આપે. તો મયુરીબેનનું સ્વાગત છે. યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. ધન્યવાદ. મયુરીબેન. નમસ્કાર, ધન્યવાદ નરેશભાઈ. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પરમાદરણીય વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી પ્રિન્સિપાલ હેમાલીબેન દેસાઈ મેડમ, નરેશભાઈ શુક્લ, આદરણીય શરીફાબેન અને ઓલ ડિગ્નિટીઝ એન્ડ રિસર્ચ સ્કોલર્સ. આ એક ઉત્તમ ઉપક્રમ છે કે પીએચડીની પ્રક્રિયા જ્યારે પ્રારંભ થતી હોય અને તે સમયે વિદ્યાર્થીઓને માટે પ્રોપર ગાઈડન્સ મળી શકે તે માટે આ એક ઉપક્રમ યુનિવર્સિટી દ્વારા શરૂ થયો છે. આ સાથે હું સ્ક્રીન શેર કરું છું મારો, તો જેથી પ્રેઝન્ટેશન બધા જોઈ શકશે. જ્યારે પણ શોધ કાર્ય આપણે શરૂ કરતા હોઈએ છીએ તો વિદ્યાર્થીઓના મનમાં એક મૂંઝવણ થતી હોય છે કે શોધ કાર્યમાં શરૂઆત કેવી રીતે કરવી, પ્રારંભ શેનાથી કરવો, શોધ એટલે શું, શું કંઈક નવું સંશોધન કરી અને આપણે જગતને આપવાના છીએ તો એનો પ્રારંભ કેવી રીતે કરવો. આવા બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થીઓના મનમાં હોય છે. કારણ કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ MA કર્યા પછી તરત જ
નેટ સ્લેટની પરીક્ષા પાસ કરે, પીએચડીની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ પાસ કરે અને રિસર્ચ પેપર લખવાનો અનુભવ ન હોય અને રિસર્ચના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરતા હોય છે. તો સૌથી પહેલા તો જ્યારે રિસર્ચના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે છે તો તે સમયે એક્ઝામ પાસ કર્યા પછી તેમની સામે એક જે સૌથી મોટી ચેલેન્જ હોય છે કે સંશોધનની પ્રપોઝલ કેવી રીતે તૈયાર કરવી. સંશોધન પ્રપોઝલ શું છે? તો એકચ્યુઅલી સંશોધનની પ્રપોઝલ માટે પણ વિદ્યાર્થીઓના મનમાં ઘણા બધા વિકલ્પો, સંકલ્પો થતા હોય છે કે આવું કરીએ, આવું ન કરીએ, આવું કરીએ તો ચાલશે કે નહીં ચાલે. કદાચ અમારી પ્રપોઝલ આવું શું શું અપેક્ષાઓ હશે અને એ અપેક્ષાઓ પૂરી નહીં થાય અને રિજેક્ટ થશે તો આવા બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થીઓના મનમાં મૂંઝવતા હોય છે. એટલે આજે જ્યારે હવે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા પાસ કરી લીધા પછીનો જે તબક્કો આવે છે તે છે સંશોધન દરખાસ્તની રચના કઈ રીતે કરવી. હાઉ ટુ પ્રિપેર રિસર્ચ પ્રપોઝલ. તો સૌથી પહેલા આપણે એ જોઈશું કે સંશોધન દરખાસ્ત પ્રપોઝલ એટલે શું. સંશોધનની યોજના, સંશોધનનો પ્રસ્તાવ કેવી રીતે તૈયાર કરવો એ ઘણી મહત્વની બાબત છે. જેવી રીતે એક આર્કિટેક્ટ બિલ્ડિંગ બનાવતા પહેલા તેની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરે છે, તે જ રીતે સંશોધકે સંશોધન કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા તેની વિસ્તૃત યોજના તૈયાર કરવી જોઈએ. કાળજીપૂર્વક તૈયાર કરેલી સંશોધન દરખાસ્તથી સમસ્યાના ઉકેલ સુધી પહોંચી શકાય છે. એટલે જો પ્રથમ પગથિયું જ કમ્પ્લીટ હશે તો તમારે છેલ્લે સુધીનો આખો નકશો કમ્પ્લીટ સુંદર રીતે બનશે. કોઈ પણ જાતના પ્રશ્નો સિવાય તમે તમારા રિસર્ચ કાર્યને અંતિમ ઓપ આપી શકો ત્યાં સુધી સફળતાપૂર્વક પસાર થઈ શકશો. બધાને સ્ક્રીન દેખાય છે ને મારો? હા મેડમ, તમારું સ્ક્રીન વિઝિબલ છે. Yes, ma'am. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. હવે આ જે સંશોધન દરખાસ્ત ને માટે એક ભ્રમ છે એ ભ્રમને સૌથી પહેલા દૂર કરવાનો એક પ્રયત્ન કરું છું કે કેટલાક એને જ સારાંશ પણ માની લે છે, સિનોપ્સિસ પણ માની લે છે, પ્રપોઝલ પણ માની લે છે. પરંતુ આ બધી વસ્તુ એક નથી. પ્રસ્તાવ અલગ છે અને સારાંશ અલગ છે. આ જ્યારે આપણે પીએચડીમાં એડમિશન Excuse me, લેવાનું હોય. ma'am. હાલો, હા Hello. હા હેલો. Ma'am, actually, I'm not able to understand Gujarati. ओके, सभी को हिंदी में ठीक रहेगा? Yeah, ma'am. ओके, ठीक है. जब हम संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करते हैं तो उस प्रस्ताव में कौन कौन सी चीज आवश्यक है, कौन कौन से सोपान है जो अनिवार्य रूप से हमारी दरखास्त में होने चाहिए. तो संशोधन दरखास्त जो है वह संशोधन प्रक्रिया का एक प्रारंभिक पार्ट है जिससे आपका संशोधन प्रारंभ होगा. सबसे प्रथम है आप अपना विषय पसंद करो. कौन से विषय में आप अपना संशोधन कार्य कर रहे हैं. तो विषय में सिर्फ हम अपने जिस विषय से गुजराती, हिंदी, इंग्लिश या इकोनॉमिक्स ऐसे किसी विषय के साथ जा रहे हैं तो उस विषय में जो भिन्न भिन्न विषय फलक है, जैसे कि नवल कथा का विषय है, महाकाव्य का विषय है, लघु कथा का विषय है, काव्य शास्त्रीय विषय है, अलंकार संदर्भ से है या छंद शास्त्र से संबंधित है, तो हमारा जो विषय है उस विषय की ओर हम जाएंगे कि
सभी विषय में तो इसमें करें या इसमें करें, ऐसा जो दो मन होते हैं, तो दो मन में से हमें नक्की करना है, पसंद करना है कि किस तरफ से नवल कथा में जाना है, शास्त्र में जाना है, या उसका बाह्य स्वरूप से जाना है, या तुलनात्मक के क्षेत्र में जाना है, या ऐतिहासिक के क्षेत्र में जाना है। सबसे प्रथम है कि अपने अध्ययन के अनुसार अपने विषय को पसंद करें। फिर उस विषय में कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को व्याख्यायित करें। हमसे पहले इस विषय में किसने संशोधन कार्य किया है, कौन कौन सी समस्याएं हैं इस फील्ड में, उसे निश्चित करना है। जब समस्याएं निश्चित हो जाए, तब उसमें से उठने वाले प्रश्नों की एक सूची बनाए, जिसे हम संशोधन प्रश्न कहेंगे। हमारा जो कार्य है, संशोधन का कार्य, वह कहाँ से संबंधित है, किस प्रश्न के साथ संबंधित है, जिसके उत्तर हमारे संशोधन के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। तो ऐसे समस्याओं के बाद आते हैं प्रश्न, और प्रश्न के बाद आते हैं कि इस प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें कौन सी डिजाइन पसंद करनी है। डिजाइन अर्थात संशोधन का जो मार्ग है, उस फ्रेम से हमारा पूरा नक्शा जो बनेगा, एक रेखा चित्र बनेगा, एक मानचित्र बनेगा। उस मानचित्र की हमें डिजाइन तय करनी है, जिसे हम संशोधन डिजाइन कहते हैं, संशोधन पैटर्न कहते हैं। और इसके पश्चात जब इतनी पूर्व भूमिका कंप्लीट हो गई जाए, इसके पश्चात आती है संशोधन दरखास्त। अब जब हमें संशोधन दरखास्त तैयार करनी है, तो उस दरखास्त के कौन कौन से सोपान हैं, उन सोपानों की ओर हमें सोचना है। हमारी दरखास्त दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो जब हमें पीएचडी में एडमिशन लेना है, संशोधन कार्य में एडमिशन लेना है, अगर हमें प्रॉपर पद्धति से दरखास्त तैयार नहीं करनी आती है, हम जितनी अपेक्षित बाबत है, अपेक्षित विषय है, उन विषयों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो संभावित है कि हमारी प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए। हमारी प्रपोजल रिजेक्ट न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हमारी जो दरखास्त है, वह दरखास्त जितने आवश्यक सोपान है, उन सभी के स्पष्टता दे रही हो, ऐसी दरखास्त आवश्यक है। दूसरा महत्व यह है दरखास्त का कि जब हम किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, यूजीसी के लिए करते हैं, या तो फेलोशिप के लिए करते हैं, या केसीजी के लिए करते हैं, तो वहां भी हमें अपनी ये प्रपोजल भेजनी होती है। अगर वहां हमारी प्रपोजल ठीक नहीं है, तो फिर हमारी जो स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन है, वह रिजेक्ट हो जाएगी। तो जरूरी है दो क्षेत्रों के लिए, एक तो पीएचडी में एडमिशन के लिए कि किसी भी मार्गदर्शक के पास हमारी दरखास्त जाए, तो उसे इतना तो आश्वासन मिल सके कि इसे दरखास्त बनाना आता है, और इस मैप के आधार पर ये ठीक तरह से ये संशोधक अपना कार्य पूर्ण कर सकता है, तो ही अपने क्षेत्र में अपने मार्गदर्शन में कोई हमें पसंद करेंगे पीएचडी कराने के लिए, शोध कार्य कराने के लिए। अतः संशोधन दरखास्त दो दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपके सामने एक डमरू के शेप में एक पैटर्न मैंने रखी है, वह आपको दर्शाती है कि सबसे पहले हमें कहां से प्रारंभ करना है।
सबसे पहले है चूज योर रिसर्च टॉपिक। हमारे विषय के क्षेत्र में जितने भी विभिन्न क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की तरफ दृष्टिपात करना है। कौन कौन से क्षेत्र में काम किया हुआ है, कौन से क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ है, ये सभी सर्च करने के पश्चात कोई एक टॉपिक पर हमें निश्चित पूर्वक आगे बढ़ना है कि इसकी ओर हम नैरो रूप से आगे बढ़ेंगे। नैरो इट डाउन एंड फाइंड योर नीचे। इसे हम संक्षिप्त करते जाएंगे कि किसी एक काव्य का हमें अध्ययन करना है, तो उस काव्य का हमें किस दृष्टि से अध्ययन करना है? उसे विवेचन के क्षेत्र से देखना है या समीक्षा के क्षेत्र से देखना है? उसे तुलनात्मक दृष्टि से देखना है या ऐतिहासिक दृष्टि से देखना है? उसे अलंकारिक दृष्टि से देखना है या काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखना है? उसे नाट्य शास्त्र के या काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार उसका समीक्षण करना है, क्या करना है? तो उस दृष्टि से हम उसका संक्षेपीकरण करेंगे कि जिस क्षेत्र को पसंद किया है उसे और शार्प बनाएंगे। जब हमने उसे पसंद कर लिया तो उसके बाद हम जाएंगे आइडेंटिफाई और रिसर्च प्रॉब्लम। उस क्षेत्र में रिसर्च के प्रॉब्लम्स कौन से हैं? अक्सर विद्यार्थी शोधार्थी जब बात करते हैं प्रारंभिक रूप में हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि क्या हम उमाशंकर जोशी पर अध्ययन करते चलेगा? कोई कहते हैं हम प्रेमचंद पर अध्ययन करते चलेगा? तो ये अध्ययन करना वह प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी क्षेत्र में कौन सी विशिष्टताएं हैं जिनके कारण ये जो ग्रंथ है, ये जो साहित्यकार है, उनका योगदान वैश्विक साहित्य में अपना स्थान बनाता है। उस स्थान तक पहुंचने के लिए उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स पर चर्चा की गई है? वहां सामाजिक है, वहां राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स है, वहां सांस्कृतिक है, पारंपरिक है, नायिका के प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं? तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाए उसके पश्चात फिर इसके बाद हमारा जो विषय है उसे हमें ब्रॉड करना है। डेवलप क्लियर रिसर्च क्वेश्चंस। अब हम बहुत ही मजबूताई से अपने रिसर्च प्रॉब्लम के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उस क्षेत्र में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की एक सूची बनाएंगे और उनके आधार पर हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है, उसका विस्तृतीकरण करना है। दो तरह से करना है। एक है दस्तावेजीकरण करना है और उन दस्तावेजों के आधार पर वहां की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालना है, उसकी समीक्षा करनी है, उसका विश्लेषण करना है। तो इस प्रकार से उसके जो सोपान है, उसके जो संभवित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की ओर निर्देश करेंगे और बाद में क्रिएट और रिसर्च डिजाइन टू आंसर देम। उनके आधार पर, उन प्रॉब्लम्स के आधार पर, उन क्वेश्चंस के आधार पर, उन पद्धतियों के आधार पर जो डिजाइन तय करेंगे कि हमारा जो अध्ययन होगा, हमारा जो शोध कार्य होगा, वह इस पद्धति से होगा। और इसके पश्चात फाइनल हमारी दरखास्त शुरू होती है। हमारी जो दरखास्त शुरू होती है
उसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है परिचयात्मक विभाग, इंट्रोडक्टरी सेक्शन, और दूसरा है मेथड सेक्शन, संशोधन की जो कार्य पद्धति है, जो रिसर्च मेथड है, उस दो विभागों के अनुसार हमारी रिसर्च प्रपोजल तैयार होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन, परिचयात्मक विभाग जो है, उसमें सबसे पहले आएगा शीर्षक। हमारा जो शीर्षक है, हमारा जो टाइटल है, शोध निबंध का, शोध प्रबंध का टाइटल है, वह कैसा होना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी, शोधार्थी ऐसा मानते हैं कि बहुत ही बड़ा विद्वतापूर्ण टाइटल रखते हैं जिससे हमारा विषय जो है वो मंजूर ही हो जाएगा, सिलेक्ट ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शीर्षक जितना हो सके उतना स्पष्ट होना चाहिए, अपने विषय वस्तु के संदर्भ में वह एकदम स्पष्ट हो एवं आडंबर रहित हो। बहुत सारे अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करके हम अपने शीर्षक को अट्रैक्टिव नहीं बना सकते, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि बहुत बड़े बड़े भरे जो वजनदार शब्द है, उन शब्दों का प्रयोग न करें। सरल एवं स्पष्ट रूप से अपने विषय को, संशोधन के क्षेत्र को जो स्पष्ट करे, उस प्रकार से शीर्षक रखना चाहिए। बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए और एकदम शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, जिसमें अर्थ सूचक जितनी भी बातें हैं, संशोधन का जो की पॉइंट है, वह इसमें निर्दिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार का शीर्षक जो संशोधार्थी के कार्य क्षेत्र को, उसकी समस्या को और उसकी पद्धति का निदर्शन करे, ऐसा शीर्षक होना आवश्यक है। जब हमारा शीर्षक तय हो जाता है, उसके पश्चात शीर्षक में समाविष्ट जिस विषय की ओर हम निर्देशन कर रहे हैं, उस समस्या का कथन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसे प्रस्तुत करना है। हमारा जो विषय है, उस विषय का कार्यक्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र के साथ हमारा टाइटल जुड़ा हुआ है, उसकी पूर्व भूमिका, उस क्षेत्र में आज तक कितने कार्य हो चुके हैं, उसकी भी एक झलक इसमें प्रस्तुत करनी है। उन कार्यों में कौन कौन से समस्या पर फोकस किया गया है, प्रकाश डाला गया है। इसके पश्चात कौन से प्रश्न रह गए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं रहा कि जहां कुछ भी कार्य ना हुआ हो। कुछ ना कुछ तो कार्य हुए ही है। अगर नया है, जैसे कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट लेते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट को आप उसका संपादन करते हैं, तो फिर उसका दृष्टिकोण अलग रहेगा। वैसे किसी भी साहित्य के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो उसके किसी न किसी क्षेत्र के साथ किसी न किसी शोधार्थी ने पहले काम किया हुआ ही होगा, और उसने जो प्रॉब्लम्स के साथ अपना कार्य किया है, उन प्रॉब्लम्स के साथ, उन समस्याओं के साथ हम कौन से नए मायने, नए मापदंड रख रहे हैं, उस पर विचार करना हमारा समस्या कथन के अंतर्गत आता है। आलंकारिक दृष्टि से कौन से प्रॉब्लम्स है, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से कौन से प्रॉब्लम्स है,
काव्य के भिन्न भिन्न साहित्य के जो संप्रदाय है, उन संप्रदाय की दृष्टि से कौन सी समस्याएं हैं, सामाजिक दृष्टि से कौन सी समस्याएं हैं, राष्ट्रीय दृष्टि से कौन सी समस्याएं हैं, आर्थिक दृष्टि से कौन सी समस्या है, उन सभी क्षेत्रों में से हमें अपने टाइटल में जिस समस्याओं की और निदर्शन किया है, उन समस्याओं का कथन हमें अपने प्रपोजल में प्रस्तुत करना है। तो ये जो बात है, समस्या में किन किन बातों की संभावना रहती है, उसकी माहिती, आपको माहिती का सोर्स कौन सा है, किस आधार पर यह समस्या उद्भवित हुई है, उनके बारे में एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका शीर्षक खड़ा है। तो समस्या कथन वह है जो हमारे शोध के टॉपिक को, शोध के टाइटल को एक प्लेटफॉर्म देता है कि इसके आधार पर हमारा शोध कार्य आगे बढ़ेगा। इसके पश्चात संबंधित साहित्य की समीक्षा है। हमारा जो सब्जेक्ट है, शोध का जो टाइटल हमने पसंद किया है, उस टाइटल के साथ कौन कौन से क्षेत्र जुड़े हुए हैं। इतिहास का क्षेत्र क्या है, उसकी पूर्व भूमिका देनी है, उसका वर्तमान क्या है, उसके शोध उसका रिलेवेंस क्या है, शोध के साथ शोध की आवश्यकता किस कारण से इस संबंधित साहित्य के साथ जुड़ी हुई है, उसकी एक समीक्षा बहुत ही शॉर्ट में हमें देनी है। तो संबंधित साहित्य, उसके साथ रिलेटेड सभी साहित्य के अगर हो सके तो आप फ्लो चार्ट या किसी पैटर्न के साथ अपने साहित्य का संबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर महाकाव्य के साथ है, आपका कोई आधुनिक महाकाव्य है, तो उसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक आती है, और कौन कौन से युग से, कौन कौन से काल से उसका परिवर्तित होता हुआ स्वरूप आज तक पहुंचा है, उस प्रकार की कुछ समीक्षा आपको प्रस्तुत करनी है। तो ये है तृतीय विषय के जो हमारे रिसर्च प्रपोजल में संबंधित रूप से रहेगा। तो समस्या कथन के पश्चात आएगा संबंधित साहित्य की समीक्षा। उसके साथ अन्य विषय जैसे कि गुजराती है तो उसके पैरेलल समकालीन साहित्य में क्या है, तो उसकी भी चर्चा कुछ निर्देश रूप में यहाँ करनी है। हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, पाश्चात्य साहित्य में क्या है, तो उसके हमारे विषय के साथ सराउंडिंग में कौन सा साहित्य है जिसकी समस्या इस हमारे टाइटल के साथ कुछ संबंध रखती है। तो ऐसे संबंधित साहित्य की भूमिका हमें तृतीय क्रम पर प्रस्तुत करनी है। चतुर्थ है हमारे संशोधन का क्षेत्र। संशोधन का क्षेत्र हमें तय करना है। बहुत सारे अभ्यास के क्षेत्र हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं, तो उसमें से कौन से क्षेत्र के साथ हमारा जो संशोधन है वह संशोधन जुड़ा हुआ है। अगर इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐतिहासिक क्षेत्र रहेगा। अगर पाश्चात्य कृतियों के साथ तुलना में जाना है तो हमारा संशोधन का क्षेत्र तुलनात्मक रहेगा। क्षेत्र की पूर्व मर्यादा और पाश्चात्य उत्तर मर्यादा, दो मर्यादाओं को हमें तय करना है, वरना ऐसा होगा कि हमारा कार्य क्षेत्र इतना बृहद हो जाएगा कि पीछे जाएंगे तो कितना पीछे जाएंगे और आगे जाएंगे तो कितना आगे जाएंगे। अतः आवश्यक है कि संशोधन का क्षेत्र कहां से कहां तक का है उसे हम निर्दिष्ट कर दें,
ताकि हमारी जो हमारा जो मैप है वह मैप क्लियर हो जाए कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक का संशोधन कार्य रहेगा। तो इस प्रकार से संशोधन क्षेत्र की एरिया को निश्चित करना ये चतुर्थ सोपान है। पंचम सोपान पर आता है अभ्यास के जो हेतु है, किस हेतु से हम ये संशोधन कर रहे हैं, किस कारण से, कौन कौन से कारण है जिसने हमें इस विषय पर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। तो जितने भी हेतु है उसे कैसे रखेंगे, इस पर एक विचार करते हैं। अभ्यास के जो हेतु होते हैं वह हमारे पूरे संशोधन कार्य का महत्व दर्शाते हैं। किस महत्व से हमारा जो कार्य रहेगा उसका संशोधन क्षेत्र में क्या महत्व रहेगा, उसमें कौन कौन से बाबतों को, कौन कौन से विषयों को हम समाविष्ट करेंगे, उसके रिलेवेंट जो संलग्न बाबत है, संलग्न विषय है, वे कौन से होंगे, उसके साथ उस क्षेत्र से जुड़ी ऐसी बाबत जो हमारे शोध के लिए, शोध कार्य के लिए आवश्यक नहीं है, उसे हम अपने हेतुओं में ही काट देंगे। जैसे कि हम किसी के काव्य का अलंकारिक दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं तो फिर वहां वर्णनात्मक विषयों का उल्लेख कुछ ज्यादा आवश्यक नहीं है। सिर्फ वर्णन करने चले जाएंगे तो फिर अलंकारिकता का शास्त्रीय जो पक्ष है वह कम हो जाएगा। तो ऐसा न हो, इसलिए उस क्षेत्र में कौन कौन से दृष्टि बिंदु हम रखने वाले हैं, तो उन दृष्टि बिंदुओं को हेतुओं के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में हमें रखने हैं। बहुत ज्यादा रख देने हैं हेतु ऐसा नहीं है, 3 या 4 हेतु भी रख सकते हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण मायना ये रखता है कि उसमें हमारे अध्ययन का, हमारे संशोधन का महत्व स्थापित होना आवश्यक है, स्थापित होना जरूरी है। उस हेतु के आधार पर ही हमें संशोधन के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होगी वह भी निश्चय होता है। हमारे संशोधन में अगर कुछ गाणितिक विषय हैं तो उसके लिए उसके बिंदु, उसके हेतु यहाँ स्पष्ट होंगे, तभी उसके आधार पर हम अपने उपकरणों को भी दर्शा सकेंगे, प्रस्तुत कर सकेंगे कि हमारे अध्ययन में इतने इतने उपकरणों की आवश्यकता रहेगी। अतः हेतु का, ऑब्जेक्टिव का निर्देशन स्पष्ट रूप से करना, दरखास्त में, प्रपोजल में करना जरूरी है। इसके पश्चात हेतुओं के आधार पर ही उत्कल्पनाओं के बिंदु स्पष्ट होते हैं। हमारे अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण उन हेतुओं के आधार पर रखना है। उत्कल्पनाएं तैयार करने से क्या होता है, हमारी जो संशोधन की समस्याएं हैं उन समस्याओं का स्वरूप विस्तृत रूप से स्पष्ट हो जाता है। जो हमारा अभ्यास है, हमारा अध्ययन है, हमारा संशोधन है, उसे, उसकी दिशा को केंद्रित करती है ये उत्कल्पनाएं। हमारे संशोधन कार्य को सरल बनाने के लिए ये जो उत्कल्पनाएं हैं वह दिशा निर्देश करती हैं। वह सामान्य रूप से 2 तरह की आती है, एक शून्य उत्कल्पना है और दूसरी है विकल्प उत्कल्पना।
अभी अभी मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? यस मैडम। हाँ हाँ थोड़ा इको आ रहा ये है, जरा देखिए। हाँ। हाँ। ये जो उत्कल्पनाएं हैं वह सैद्धांतिक धारणाओं के आधार पर तार्किक रूप से की जाती है और उसे H0 और H1 से दर्शाई जाती है। ये जो उत्कल्पना है वह हमारे संशोधन को दिशा देती है। उसके आधार पर आगे निश्चित होता है अभ्यास की अर्थ सूचकता। जो हमारा संशोधन है वह किस प्रकार का सूचन कर रहा है, किसी व्यापक अर्थ की ओर दिशा निर्देश करता है या नहीं, वह महत्व साबित होता है हमारे अभ्यास की अर्थ सूचकता के निर्देश से। अर्थ सूचकता के संदर्भ में हम देखें तो संशोधन दरखास्त उसमें अभ्यास की जो योग्यता है, उसकी जो आवश्यकता है, क्यों ये अध्ययन आवश्यक है और वर्तमान स्वरूप में इसका अध्ययन क्यों अनिवार्य है। तो शोध का जो कारण है, जो हेतु है, उसके आधार पर जो उत्कल्पनाएं प्रस्तुत की है और उत्कल्पना से जो दिशा निर्देश होता है, उस दिशा निर्देश का अर्थ सामर्थ्य अभ्यास की अर्थ सूचकता से हमें प्राप्त होता है। तो अर्थ सूचकता व समस्या की अनिवार्यता को सिद्ध करते हैं। अपनी विशेषताओं को, अभ्यास की विशेषताओं को प्रस्तुत करना एवं उसके संलग्न जुड़ी विषयों का विश्लेषण करना और हमारे उस विश्लेषण के आधार पर हमारी जो प्रपोजल है वह एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है, इसका एक आधारभूत जो स्तंभ है वह है अभ्यास की, संशोधन की अर्थ सूचकता। इसके पश्चात हमें अभ्यास के क्षेत्र की मर्यादाओं को भी देखना है, प्रस्तुत करना है कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं, हम जो संशोधन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी मर्यादाएं आती हैं जिसके कारण हम निर्धारित कार्य तक, हम निर्धारित निर्णय तक पहुंचने में इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इतनी मर्यादाओं को इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो ऐसी मर्यादाओं का उल्लेख भी यहाँ करना है। जैसे कि कोई शिलालेख पर हम काम कर रहे हैं, तो उस शिलालेख की जो लिपि है वह लिपि में शायद कुछ शब्द हमें मिल नहीं रहे हैं, तो जिस स्वरूप में है तो उसी स्वरूप में उसे लिखा जाएगा। तो उस प्रकार की मर्यादाएं हमारे संशोधन में कौन कौन सी है, उसे सोच विचार करके उसका निर्देशन करना भी आवश्यक है। 2 या 3 वाक्यों में अपनी मर्यादाओं का निर्देश करें। तत्पश्चात संशोधन कार्य पद्धति का विभाग आता है। किस प्रकार से हमारी संशोधन का कार्य करने के लिए हमने जो पद्धति पसंद की है, तो वह कैसे पसंद करेंगे। तो उसमें हमारा सबसे प्रथम है शुरुआत से दरखास्त का क्रम जो आता है वह है 9वां क्रम और वह है व्याप विश्व और सैंपल। हमारा जो टॉपिक है उसकी व्यापकता कितनी है और दूसरी बात यह है
उस विषय को स्पष्ट करने के लिए, उस विषय की समस्या को, उस विषय के प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए अन्य प्रश्न किस प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं, तो वह है सैंपल के तौर पर। तो ऐसे प्रश्न और कौन से साहित्य में हमें उपलब्ध होते हैं, उसका दिशा निर्देशन हमारा विषय का व्यापकत्व एवं उसका अन्य प्रश्नों, अन्य समस्याओं के साथ सैंपल रूप में किस प्रकार से मिल सकते हैं, उसे हमें प्रस्तुत करना है। उसके आधार पर हमने जो हेतु और अर्थ सूची दी थी, तो उसके आधार पर हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए हमारे अध्ययन के लिए, उन टूल्स के निर्देश, उसकी सूची बना के हमें देनी है। इसके पश्चात हमारी जो संशोधन पद्धति है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन सी मेथड से हम संशोधन कार्य करेंगे, उसे निर्देश करना है, जिसमें आती है ऐतिहासिक संशोधन पद्धति है, वर्णनात्मक संशोधन पद्धति है, प्रायोगिक संशोधन है। वर्णनात्मक संशोधन पद्धति है, उसके क्षेत्र में आते हैं सर्वेक्षण पद्धति, विषय वस्तु पृथक्करण पद्धति, संबंधात्मक पद्धति, विकासात्मक पद्धति और ध्रुवांश विज्ञानात्मक संशोधन, इथेनोग्राफिक पद्धति। विकासात्मक पद्धति जो है वह आड़छेदी अभ्यास पद्धति और सड़ंग सूत्री अभ्यास पद्धति, दो विभागों में विभाजित होती है। संबंधात्मक पद्धति जो है वह व्यक्ति अभ्यास पद्धति, कारण तुलनात्मक पद्धति एवं सह संबंधात्मक अभ्यास पद्धति। तो इन पद्धतियों में से हमारे संशोधन का विषय किसके साथ जाएगा, ये तय करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर आपका जो टाइटल है उसका सीधा संबंध रहेगा। अतः इसमें से हमें अपने विषय में निश्चित करना है कि हम किस प्रकार की पद्धति के साथ अपना संशोधन कार्य करेंगे, और उसके जो तत्व है, जैसे कि ऐतिहासिक संशोधन पद्धति के जो सोपान है, तो उसके और भी हमें अध्ययन करके हमें निश्चित करना है कि हमारे अध्ययन के सोपान इस प्रकार से रहेंगे। इसके पश्चात आता है पृथक्करण प्रविधि, एनालिसिस। हमने जो संशोधन किया है, हम करने वाले हैं अपने विषय में, तो उसकी जो पृथक्करण प्रविधि कौन सी होगी, उसका एनालिसिस किस प्रकार से होगा, उसका निदर्शन करना है। यहां भी हमें 3 या 4 जितने विषय में मुद्दे लेकर उसका पृथक्करण दर्शाना है कि उसके पृथक्करण की प्रविधि इस प्रकार से रहेगी। इसके पश्चात आता है हमारे संशोधन का प्रकरण आयोजन, जिसमें पूरी रूपरेखा होगी कि प्रस्तावना कहाँ होगी, इसके पश्चात कौन सा पेज आएगा, अनुक्रमणिका कहाँ आएगी, ऋण स्वीकार कहाँ आएगा, प्रकरण, प्रथम प्रकरण कौन सा होगा, उसके जो पेटा प्रकरण होते हैं वो किस प्रकार से रहेंगे, उसके टाइटल संभवित कौन से रहेंगे, ये संभवित आयोजन करना है। और प्रथम टाइटल पेज से लेकर अंतिम पेज तक का पूरा आयोजन यहाँ देना है। इसके पश्चात कितने समय में, 6 महीने के समय में हम कितना काम करेंगे, इसके पश्चात के 6 महीने में हम कितना काम करेंगे, तो जितना हमारा पीएचडी का समय है, पूरे समय को 6-6 महीनों में विभाजित करके हमारा कार्य का आयोजन प्रस्तुत करना है कि इतने समय में इतने प्रकरण का कार्य संपूर्ण होगा। तत्पश्चात आर्थिक खर्च का आयोजन भी देना है कि इतना कार्य करने के लिए कितना आर्थिक खर्च होगा, क्योंकि इसके आधार पर आपको आगे भी आयोजन करना है कि किस प्रकार से आप स्कॉलरशिप ले। बस मेरा पूर्ण ही होता है। इसके पश्चात संदर्भ सूची आती है, रेफरेंसेस आते हैं। रेफरेंसेस किस प्रकार से
हमें देने हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको हाइलाइट्स में दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा भी समय जो है वह समाप्त होने जा रहा है। तो हो सके तो आप इसका फोटो ले लीजिए, ताकि इससे आप कुछ समझ सकेंगे कि 6-6 मार्क्स के 6-6 महीने का आयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं। रेफरेंस की जो स्टाइल है वह आपको निश्चित करनी है कि आपके संशोधन कार्य में रेफरेंस किस प्रकार से आप देंगे। एपीए स्टाइल में देंगे, एमएलए स्टाइल में देंगे, या चिकागो स्टाइल में देंगे, किस प्रकार से ये रेफरेंस स्टाइल है, ये हमें निश्चित करनी है। હવે બોલ और आपके सामने एक प्रपोजल उदाहरण के रूप में भी मैं प्रस्तुत करती हूँ, जिससे आप अंदाजित अपनी प्रपोजल किस प्रकार से होगी ये कुछ तय कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के प्रति, आदरणीय वाइस चांसलर श्री के प्रति एवं सर्वजज्ञ एवं शोध छात्रों के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए अपने विषय को यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद। આભારી મયુરીબેન, આપે વિદ્યાર્થીઓને પ્રપોઝલ કઈ રીતે તૈયાર કરવી એનું સરસ રીતે માર્ગદર્શન આપ્યું, એ માટે યુનિવર્સિટી પરિવાર અને વિદ્યાર્થીઓ વતી આપ સૌનો આભાર માનો. અને હવે સમય ન લેતા તરત જ બીજા વક્તાને તમારી સામે રજૂ કરું છું. એ છે સુપ્રસિદ્ધ વિવેચક, સંપાદક, અનુવાદક અને ઉત્તમ કોટીના સંશોધક એવા ડોક્ટર શરીફા વીજળીવાળા. આ યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે કાર્યરત એવા ડોક્ટર શરીફા વીજળીવાળાના પુસ્તકોનું લિસ્ટ ઘણું લાંબુ છે અને આપ સૌ જાણો છો. એવું જ એક બાબત છે. ગુજરાતની નામી સંસ્થાઓ, સાહિત્ય અકાદમી, સાહિત્ય પરિષદ, એટલું જ નહીં, કેન્દ્રીય અકાદમીના એવોર્ડ દ્વારા એ સન્માનિત થયેલા છે. નેરેટોલોજી, નારીવાદી લેખન, વિભાજનનું સાહિત્ય, નવલકથા અને વાર્તા તેમજ ભારતીય સાહિત્યમાં એમનો અભ્યાસ નોંધપાત્ર રહ્યો છે. ગુજરાતી ભાષાના અગ્રણી વિવેચક એવા શ્રી શરીફા વીજળીવાળાનું સ્વાગત છે. એમનો વિષય છે સંશોધન વિષયની પસંદગી અને એનો વ્યાપ. તો આવો સાંભળીએ શરીફા વીજળીવાળાનું. શરીફા બેન, ધન્યવાદ. આદરણીય વાઇસ ચાન્સેલર મયુરીબેન, નરેશભાઈ અને સંશોધન માટે उत्सुक विद्यार्थी मित्रों, आप लोग थोड़ी धीरज रखना. आई विल मिक्स अप द लैंग्वेज. आई विल यूज इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती. ऑल 3 लैंग्वेज आई विल यूज. और अगर किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम होते तो यू कैन राइट डाउन हियर. आई विल रीड दैट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट. हम लोग जो सब्जेक्ट के व्याप के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले मुझे एक बात ये करनी है कि इतने सारे, मैं आज आपको कुछ 50-60 सब्जेक्ट दिखाने वाली हूँ कि ये इंतजार कर रहे हैं ये सब सब्जेक्ट्स की कोई संशोधक आए और हम पर काम करे, लेकिन कोई आता नहीं है क्योंकि वी आर रिपीटिंग द सब्जेक्ट. एक ही सब्जेक्ट पे कुछ 30-40 लोग काम करते हैं. जैसे हमारे गुजराती में देखिए कि शायद हिमांशी बेन पे या तो शायद धीरूबेन पटेल पे कुछ 40-50 लोग ने संशोधन किया है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने सारे सब्जेक्ट जब इंतजार कर रहे हैं तो व्हाई वी आर रिपीटिंग. हम क्यों एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए. तो आज हम लोग देखेंगे कि ये व्याप कितना बड़ा है. कोई मुझे रिक्वेस्ट करा है कि गुजराती में बोलो. गुजराती में बोलो. Somebody is requesting me speak in Gujarati. हाँ मैम, गुजराती बोलो. What to do?
I don't mind in any language. I cannot speak No, ma'am. fluent English. I don't understand Gujarati. No, ma'am. I don't know. Okay, okay. Understand I'll Gujarati. continue in Hindi. I'll No continue in Hindi. Gujarati, please. Okay. Madam, please continue in Hindi and English. That will be better. So, हम लोग 3-4 लैंग्वेज की एक साथ बात करेंगे कि अगर आप गुजराती में कर रहे हैं, आप हिंदी में कर रहे हैं, आप संस्कृत में कर रहे हैं, या तो आप इंग्लिश में कर रहे हैं, तो मैं ये चारों के लिए आपको सब्जेक्ट दे रही हूँ। सबसे पहले मैं लेती हूँ क्रिटिसिज्म। इफ वी वांट टू वर्क ऑन क्रिटिसिज्म, जिसको हम विवेचन या हिंदी में जिसको आलोचना बोलते हैं, या संस्कृत में जिसको अलंकार शास्त्र बोलते हैं, इफ यू वांट टू वर्क ऑन दैट टॉपिक, सो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इंग्लिश भी आती है और संस्कृत भी आती है, तो आप मैं जो जो सब्जेक्ट बता उस पर काम कर सकते हैं। ट्राई टू कंपेयर एरिस्टोटल एंड भारत नाट्य शास्त्र, ये दोनों की जो डेफिनेशन है और भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है, हमारे यहाँ पे लोगों ने काम किया है, लेकिन नए लोग भी इसमें काफी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन वर्क ऑन गुजराती टर्मिनोलॉजी। गुजराती विवेचन में जो जो टर्मिनोलॉजीज आई, वो कौन कौन से क्रिटिक्स से लिया, कहीं कॉलरिज है, कहीं और कोई है, कहीं एलियट है, तो ये दोनों का कंपेयर करो कि गुजराती टर्मिनोलॉजी, जिसको हम गुजराती में परिभाषा बोलते हैं, ये परिभाषा, ये टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में कहां से आई, इंग्लिश क्रिटिसिज्म से। फिर 3-4 टॉपिक और है क्रिटिसिज्म में। अगर आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर लाइफ सेक, ये तो हर मतलब हिंदी वाला भी कर सकता है, गुजराती वाला भी। आपके पूरे लिटरेरी जो आपके पूरे जो युग है, इसमें ये आर्ट फॉर आर्ट और आर्ट फॉर लाइफ ये कैसे बदलता रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। दैट इज वन। सेकंड इज कम्युनिकेशन, जिसको गुजराती में बोलते हैं संक्रमण। तो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो इंग्लिश में कैसे बदला और गुजराती में फ्रॉम नर्मद टू सुरेश जोशी एंड सुमन शाह, ये कंसेप्ट कैसे बदलता है। फिर फॉर्म, आकार जिसको बोलते हैं, रूप जिसको बोलते हैं, इसका जो कंसेप्ट है वो पश्चिम में कैसे रहा और गुजराती में, हिंदी में ये कंसेप्ट कैसे बदलते बदलते आज तक पहुंचा। सो रूप की बात करो, कम्युनिकेशन की बात करो। देन थर्ड इज मीनिंग, अर्थ जिसको बोलते हैं, ये मीनिंग का जो कंसेप्ट है वो कैसे बदलता बदलता आज तक जहां पे हम आज ठहरे हैं वहां पे ये आया। ये विवेचन के क्षेत्र में ये सब बातें हैं। और एक और चीज है जो हिंदी गुजराती वाले कर सकते हैं कि ट्राई टू रीइवेल्युएट, जिसको पुनर्मूल्यांकन बोलते हैं। आपके जो साहित्यकार है, आपके जो साहित्य के युग है, उसको आप पुनर्मूल्यांकन करो, रीइवेल्युएट करो, क्योंकि मूल्यांकन हुए बहुत साल हो गए। कोई कोई सर्जक है जिसको हमने बहुत ऊपर चढ़ा दिया है, कोई कोई सर्जक है जिसका एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। तो ट्राई टू डू दैट। ये बिल्कुल बाकी बचा हुआ क्षेत्र है, लोग इस पे काम नहीं करते हैं। तो दिस आर द पॉसिबिलिटीज इन क्रिटिसिज्म। सेकंड जो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है रिसर्चर के लिए, वो टॉपिक है कोई भी एक ऑथर पकड़ो और उस पे काम करो। दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक फॉर रिसर्चर। बट आई विल टेल यू कि ये इतना इजी नहीं है जितना हम मानते हैं। हमने उसको इजी बना दिया है कि सिर्फ जीवन और कवन और 3 टेक्स्ट ले लो और उसके बारे में लिख दो, काम हो गया। नो, इट इज नॉट दैट मच इजी। आपको इसमें जो डेप्थ में काम करना है, वो डेप्थ का अगर एक एग्जाम्पल चाहिए तो उमाशंकर जोशी, जो हमारे जायंट राइटर थे, उन्होंने जो पीएचडी किया, अखो एक अध्ययन, आप इसको देखिए।
तो आपको पता चलेगा कि अगर ऑथर पे काम करना है तो आपके मापदंड जो है वो कितने ऊंचे होने चाहिए। तो इसको इजी टास्क मत बना दीजिए। The fourth topic, this one is also for all languages except संस्कृत। संस्कृत वाले शायद इस पे नहीं करेंगे, जिसको हम जीवन कथनात्मक नवल कथा बोलते हैं, उपन्यास बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जिसको हम बोलते हैं। ये जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ये इंग्लिश में भी इतनी लिखी गई है, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है। तो कोई अगर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल लेकर काम करता है तो उसको क्या करना है, उसको ये देखना है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ कितना किया गया है, कितना ट्रूथ है और कितना इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ है। जो व्यक्ति उन्होंने पसंद किए नॉवेल के लिए उसकी लाइफ से कितना लिया है, उन्होंने कितनी छूट ली है, कितनी इमेजिनेशन का यूज किया है। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे गांधी जी जैसे कोई व्यक्ति विशेष है और उस पर किसी ने नॉवेल लिखी है। हिंदी में गिरिराज किशोर की छेल्लो गिरमिटियो बहुत ही जानी नॉवेल है। फिर गुजराती में अगर देखोगे तो जयंत गाड़ित की सत्य जो 4 पार्ट में लिखी गई है। अगर मुझे ये नॉवेल पे काम करना है तो गांधी तो एक ऐसी व्यक्ति थी जिसकी जीवनी के बारे में एक एक शब्द लिखा गया है। आप महादेव भाई की डायरी के 18 या अभी तो 23 भाग आ गए हैं, वो 23 पार्ट से आपको पसार होना है, आपको पढ़ना है। फिर प्यारेलाल ने जो महादेव भाई की डेथ के बाद प्यारेलाल ने पूर्णाहुति के 4 भाग लिखे, वो भी आपको पढ़ना है। नारायण देसाई ने गांधी की जीवनी लिखी, मारू जीवन एज मारी वाणी, वो भी आपको पढ़ना है। और बाद में आप तय करेंगे कि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया है उसमें इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन कितना हुआ है। तो आपके पास दिनकर जोशी की काफी सारी नॉवेल है। उन्होंने नर्मद, हरिलाल गांधी, सोक्रेटिस, टॉल्स्टॉय, मोहम्मद अली जीना और काफी सारी और भी लिखी है। अगर किसी को इंग्लिश में काम करना है तो अरविंग स्टोन, उन्होंने कुछ 4 और 5, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन 5 तो मुझे याद है, उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल लिखी है। जैसे जो वर्ल्ड फेमस पेंटर है वान गोग, उसकी जीवनी पे लस्ट फॉर लाइफ, जेक लंडन के जीवन पर सेलर ऑन हॉर्सबैक, माइकल एंजेलो के जीवन पर से एगनी एंड एक्सटेसी, और साइकोलॉजिस्ट जो है फ्रॉइड के जीवन पर पैशंस ऑफ द माइंड। तो एक और आपके पास व्यक्ति का जीवन है और दूसरी ओर आपके पास ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इस पर से आप ये देख सकेंगे कि आप काम कर सकेंगे राइटर ने कहां कहां क्या क्या नहीं लिया है, छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है, और अगर कुछ ऐड किया है मतलब रिकंस्ट्रक्ट किया है तो वो रिकंस्ट्रक्ट करने का उसको कितना अधिकार है। जैसे वान गोग में वो कर सकते हैं। मैडम कैमरा नो एंगल चेंज થઈ ગયો। શરીફાબેન કેમેરાનું રિલીઝનું બટન દબાવો, જે ઉપર છે ડાબા જમણા ઉપર જે આમ બે નિશાન છે ને, હા બસ બરાબર એ જ છે। હા બસ, અને સેજ કેમેરોને ઊંચો લઈ જાઓ એટલે આખો ચહેરો દેખાય। બસ હા હજી નીચે કરો, તમારો ચહેરો આખો આવે ને એમ નજીક લાવો। ઓકે બરાબર, ચાલશે। ઓકે નીચે જ છે પણ હજી થોડુંક તમે સીધો કરશો ને ટેબ્લેટ ને એટલે હા 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 એમ કરો, હા એમ કરો એટલે બરાબર। ઓકે ઓકે
આગળ જાઓ, હા બરાબર. બરાબર છે આગળ ચાલો. મેડમ, બરાબર છે મેડમ. આગળ ચાલુ, હા જી, આગળ હા જી, ચલાવું. હા જી. તો આ થઈ ઓટોબાયોગ્રાફિકલ નોવેલ. ધારો કે તમે હિસ્ટોરિકલ નોવેલ લીધી છે, તો हिस्टोरिकल नॉवेल ની અંદર પણ એની શરતો હોય છે કે उसकी कुछ कंडीशंस होती है. आप कितने कल्पना ले सकते हैं, कितनी इमेजिनेशन और कितनी हिस्ट्री, कितने इमेजिनेटिव कैरेक्टर हिस्टोरिकल नॉवेल में चल सकते हैं, इन सब के नियम. बिकॉज हिस्टोरिकल नॉवेल का कंसेप्ट पूरा क्लियर है अपने पास, तो वो अगर हम करते हैं तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. और फिर अगर तीसरा एक सब्जेक्ट में आपको, जो आजकल बहुत ही फैशन जिसको मैं बोलती हूँ, वो है कंपैरेटिव लिटरेचर. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिटरेचर असल में तो है, लेकिन उसमें दो स्कूल है. एक स्कूल है फ्रेंच स्कूल है और दूसरी है अमेरिकन स्कूल. हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो लोग सिर्फ फ्रेंच स्कूल पे ही काम करते हैं. एक राइटर दूसरा राइटर, एक टेक्स्ट दूसरी टेक्स्ट, एक थीम दूसरा थीम, इससे आगे हम लोग जाते ही नहीं है. तो ये जो फील्ड है, अगर हम बैठे बात करने के लिए तो सिर्फ कंपैरेटिव में ही हम 2 घंटे के लिए का बात कर सकते हैं. तो कंपैरेटिव स्टडी अगर आपको लिटरेचर की करनी है तो यू शुड डू like this ki not only French school, you have to use American school also. So हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं. द फर्स्ट इज लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, साहित्य और मनोविज्ञान. अगर ये लिया तो इसमें आपको और कितने टॉपिक मिल सकते हैं. अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो गो for story of initiation, this is related with psychology if you are interested. गुजराती में इसको बोलेंगे नव दीक्षानी वार्ताओं. You can take story of initiation from Gujarati, from Indian literature and from the whole world if you are interested. The second topic from psychology is abnormal characters in literature. अगर आप ढूंढने बैठेंगे एबनॉर्मल कैरेक्टर्स तो सिर्फ गुजराती में ही मुझे कुछ 50 कैरेक्टर मिलते हैं. तो आपको शेक्सपियर के पास भी आप जा सकते हैं, आप वर्जीनिया वुल्फ के पास भी जा सकते हैं, आप डिकन्स के पास भी, और आप दोस्तोवस्की के कैरेक्टर इडियट के पास भी जा सकते हैं अगर जाना है तो. दिस इज अ वेरी वास्ट फील्ड इफ यू वांट टू डू एबनॉर्मल कैरेक्टर्स इन लिटरेचर. देन अगर और आगे आपको साइकोलॉजी में जाना है तो जेलसी, ईगो एंड ह्यूमन रिलेशन. अगर मैं ढूंढने बैठी तो सिर्फ जेलसी पे मुझे कुछ 18 गुजराती शॉर्ट स्टोरी मिली. नॉवेल तो और है, ड्रामा भी है. तो अगर आप इंडियन लिटरेचर इसमें ऐड करो, आप इसमें वर्ल्ड लिटरेचर ऐड करो, तो आप कल्पना करो कि आपके पास कितने सारे, आपका व्याप कितना बढ़ जाए. हाँ, लेकिन एक शर्त है, अगर ऐसे टॉपिक लेते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू साइकोलॉजी. व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल, यू हैव टू गो थ्रू दैट नॉर्म्स. सो अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है देन ओनली यू कैन चूज दिस सॉर्ट ऑफ टॉपिक, अदरवाइज इसमें जाना मत. अभी साइकोलॉजी में ही हूं मैं. स्त्री पुरुष संबंध, दाम्पत्य जिसको बोलते हैं, यहां पे भी आप जेलसी, ईगो और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि एंड गुरुता ग्रंथि, आप यहाँ पे भी ये सब प्रॉब्लम लेके काम कर सकते हैं अगर आपको एबनॉर्मल और नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़नी है तो. अभी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं जिसको बोलते हैं साहित्य एंड समाज विज्ञान, लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी. अगेन दिस इज ए ह्यूज फील्ड, इसका व्याप काफी है. आप इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं. जैसे बहुत अच्छी साहित्य कृति जो है, लिटरेरी टेक्स्ट है, उसने हमारे समाज पे उसका क्या असर हुआ,
द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट ऑन अवर सोसाइटी। अवर सोसाइटी जब मैं बोलती हूँ तब मैं वर्ल्ड को इसमें इंक्लूड करती हूँ। जैसे रस्किन की अनटू दिस लास्ट से मैं शुरू करूंगी, क्योंकि अगर गांधी ने ये नहीं पढ़ी होती तो शायद वो सत्याग्रह का विचार उसके दिमाग में नहीं आता, तो शायद हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी जो दशा एंड दिशा कुछ और ही होती। तो एक किताब ये कर सकती है। दूसरा, अगर स्टाइनबेक की द ग्रेव्स ऑफ रॉथ, इसमें जो प्रॉब्लम था रूटलेसनेस और एक राज्य का जो वर्कर है, मजदूर है, वो दूसरे राज्य में जाके काम नहीं कर सकता था, एक नॉवेल लिखी स्टाइनबेक ने द ग्रेव्स ऑफ रॉथ, और अमेरिकी संसद को पूरा लॉ बनाना पड़ा, और ये बिकॉज ऑफ दिस नॉवेल ये कायदा बना वहां पे कि अभी कोई भी स्टेट से वर्कर दूसरे स्टेट में जा सकेगा और काम भी कर सकेगा। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट ऑन अवर सोसाइटी। इतनी बड़े इम्पैक्ट भी हो सकती है। तीसरा बहुत फेमस एग्जांपल है हैरियट बीचर स्टोव की अंकल टॉम्स कैबिन। अमेरिका में जो गुलामी प्रथा थी उसको हटाने के लिए सिर्फ अब्राहम लिंकन ने काम किया ऐसा नहीं, इस नॉवेल ने भी इतना ही बड़ा काम किया है। अगर हम हमारा स्वतंत्रता संग्राम देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ लीजिए, और आनंद मठ का वो गाना वंदे मातरम, उसका कितना बड़ा प्रभाव था वो भी हम देख सकते हैं। आनंद मठ को कुछ 15, 17, 18 साल के बाद जवाब देने के लिए राष्ट्रवाद मानी क्या है, ये टैगोर उसके लिए घरे बाहिरे लिखते 1916 में। एक और आप आनंद मठ पढ़िए, दूसरी ओर आप टैगोर को पढ़िए और टैगोर के राष्ट्रवाद को पढ़िए, और आपको जवाब मिलेगा कि हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। आप गोरा और घरे बाहिरे दोनों लीजिए टैगोर की, और फिर राष्ट्रवाद क्या है, असली राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि टैगोर की एक किताब भी है राष्ट्रवाद जो इंग्लिश में थी, अभी अभी उसका गुजराती ट्रांसलेशन भी अवेलेबल हुआ है। तो यू कैन कंपेयर और यू कैन एक्सप्लोर कि गोरा में कैसे है, आनंद मठ में कैसे आया, घरे बाहिरे में कैसे आया। तो दिस इज द वन थिंग। किसी गुजराती को अगर काम करना है तो सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ सात पगला आकाश, कुंदनिका कापड़िया की ये जो नॉवेल आई, फेमिनिज्म बाद में आया, पहले सात पगला आकाश में आए, और यू कैन गो थ्रू सोशियोलॉजिकल अप्रोच कि सात पगला आकाश में एक नवलकथा थी ગુજરાતી સમાજની અંદર સ્ત્રીઓની છબી અથવા તો સ્ત્રીઓની વિચારસરણી કેવી રીતે બદલા। अभी और आगे एक टॉपिक लेते हैं सोशियोलॉजी में, गांधी जी का समाज और साहित्य पर प्रभाव। ये पूरे इंडिया में हुआ है, कोई गुजराती लिटरेचर पे हुआ ऐसा नहीं है, हर एक लैंग्वेज पे हुआ है। दो व्यक्ति ऐसे है, रादर 3 व्यक्ति ऐसे जिसका प्रभाव पूरे इंडिया की हर लैंग्वेज, एक टैगोर जिसने आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात की, एक गांधी जिसने आर्ट फॉर लाइफ सेक की बात की, और अरविंदो जिसने पूरी फिलोसॉफिकल वेन में लिटरेचर को लेके गए। तो ये तीनों का प्रभाव हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गांधी की बात करूंगी। तो जो स्वदेशी चळवळ आई, स्वदेशी आंदोलन, आप घरे बाहिरे में ये देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन मानी क्या है, आप गोरा में भी देख सकते हैं। तो गुजराती या हिंदी नॉवेल में या शॉर्ट स्टोरी में ये कैसे आया, ड्रामा में आया। गांधी की वजह से स्त्री जागृति, स्त्री जो घर के अंदर थी नारी, उसने घर के बाहर पिकेटिंग के लिए बाहर कदम रखा, वो जेल में गई। तो एक नारी मुक्ति आंदोलन गांधी ने कैसे शुरू किया, गांधी ने शुरू नहीं किया था, ये अपने आप हुआ। लेकिन अगर आपको नारी मुक्ति की बात करनी है इंडियन परिप्रेक्ष्य में, तो आपको गांधी की बात करनी ही पड़ेगी। अस्पृश्यता निवारण की बात हुई, अस्पृश्यता निवारण न हुआ लेकिन बात हुई।
लिटरेचर में जो राजा महाराजा और सेनापति और सैनिकों की बात होती थी, वहां पे एक कॉमन मैन की एंट्री हुई, जिसको हम बोलते हैं छेवाड़ाना मानस नो प्रवेश। तो दैट इज बिकॉज ऑफ गांधी। सर्जक अपनी समस्याओं के आसपास वापिस आया, लाइफ के आर्ट फॉर लाइफ से की बात करने लगा फिर से। और जो लैंग्वेज बहुत ही दुर्बोध थी, it was very difficult in Pandit Yug, before Gandhi and after Gandhi, the change in language, ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं if you are interested। फिर एक और टॉपिक है सोशियोलॉजिकल अप्रोच से अगर आपको अभ्यास करना है तो पूरे भारत में जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, मैं भारत की बात करती हूँ, आप भारत से बाहर की ऑटोबायोग्राफी भी ले सकते हैं। वो ऑटोबायोग्राफी में कौन सा समाज दिख रहा है, आपको प्रतिबिंबित हो रहा है, वो समाज की हम बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर गुजरात की बात करनी है तो गांधी के समय में दो ऑटोबायोग्राफी हमें बहुत, गांधी को छोड़ के इंदुलाल याग्निक की ऑटोबायोग्राफी है 6 पार्ट में, सुमंत मेहता की ऑटोबायोग्राफी है कुछ 600 पेज में, सुमंत मेहता की पत्नी शारदाबेन मेहता की ऑटोबायोग्राफी है, ये सब, फिर रविशंकर रावल, ये सब की ऑटोबायोग्राफी से आप उस टाइम का गुजरात कैसा था, उसके सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थे, स्त्री की छवि क्या थी, ये सब आप अभ्यास कर सकते हैं अगर सोशियोलॉजिकल अप्रोच में आपको इंटरेस्ट है। लेकिन इसके पहले आपको सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, जैसे उसमें आपको साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी कंपैरेटिव स्टडी। अगर आपको भारतीय सर्जक की आत्मकथा पढ़नी है और उसमें नारी की जो छवि है वो देखनी है, तो मन्नू भंडारी, ये भी प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या, मैत्रेयी पुष्पा की, इस्मत चुगताई की कागजी है पैरहन, कृष्णा सोबती को पढ़िए, अमृता प्रीतम की रेवेन्यू स्टैम्प, कमला दास, इंदिरा गोस्वामी, अजीत कौर टिवाणा, और गुजराती में अभी हिमांशी शेलत की भी मुक्ति वृतांत आई है। तो हम लोग इसमें स्त्री पुरुष संबंध भी, इसके बारे में भी अभ्यास कर सकते हैं, और स्त्री की छवि, बदलती हुई छवि, उसके बारे में भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर फिल्म क्षेत्र की स्त्री की बात करनी है तो हंसा वाड़कर की बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है, जिस पर से भूमिका नामक फिल्म भी बनी हुई है, दुर्गा खोटे की, शौकत आजमी की, कानन देवी की, प्रतिमा बेदी की, ये सब ऑटोबायोग्राफी पे आप काम कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसा इंटरेस्ट है कि पति पत्नी दोनों ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है और एक दूसरे के बारे में क्या लिखा है, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि सार्त्र और सिमोन द बुआ, इन दोनों की ऑटोबायोग्राफी अवेलेबल है। शारदा मेहता और सुमंत मेहता गुजराती में, दोनों की ऑटोबायोग्राफी अवेलेबल है। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव, इन दोनों की ऑटोबायोग्राफी अवेलेबल है। तो राजेंद्र यादव, जिसने भारत में स्त्री विमर्श के बारे में इतना सारा लिखा, शायद सबसे ज्यादा स्त्री विमर्श के बारे में लिखा, वो राजेंद्र यादव अपनी खुद की पत्नी के साथ क्या बर्ताव करते थे, ये अगर आपको पढ़ना है तो मन्नू भंडारी की एक कहानी ये भी और राजेंद्र यादव की मुड़ मुड़ के देख, तो ये दोनों पढ़ने से हम लोग सोशियोलॉजिकल अप्रोच से ऑटोबायोग्राफी का अभ्यास कर पाएंगे। अगर किसी को भारतीय नारी पे काम करना है, पूरे इंडिया की बदलती हुई स्त्री की जो छवि है उसके बारे में अगर काम करना है, तो आप टैगोर की गोरा की जो माँ है वो देखिए, घरे बाहेरी की विमला को लीजिए, चोखेर बाली की जो स्त्री, वो तो विधवा है, उसको लीजिए, और आरोग्य निकेतन की जो स्त्री है उसको लीजिए, ये बांग्ला है। अभी मैं आगे जाती हूं, शिवराम कारंत कन्नड़, धरती खोले पाछो वळे, उसकी औरत लीजिए। शशि देशपांडे, शी इज इंग्लिश नॉवेलिस्ट, लॉन्ग साइलेंस की जो खामोशी की जो नायिका है उसको लीजिए।
मराठी भूमि आशा बगे की नॉवेल, उसकी जो मैथिली है उसको लीजिए, इस्मत चुगताई की टेढ़ी लकीर की नायिका को लीजिए, ये सब बिफोर 60 है, बिफोर 60। आफ्टर 60 थोड़ी बहुत मूवमेंट आई, फेमिनिस्टिक जो मूवमेंट अपने यहाँ पे आई आफ्टर 60 आई। मैंने जो नाम लिए वो सब बिफोर 60 नॉवेल है, और पूरे इंडिया का प्रतिबिंब आपको इसमें। तो भारतीय नारी पे अगर काम करना है तो आप ये सब नॉवेल लेके कर सकते हैं। और अगर बाद की नारी, जब फेमिनिस्टिक मूवमेंट पूरे इंडिया में आई, उसके बाद की भी ले सकते हैं, उसके पहले की भी ले सकते हैं। पहले की लेनी है तो गांधी, टैगोर, इसकी बात करनी पड़ेगी। अगर आपको जो आजादी के बाद पूरे देश में मूल्य परिवर्तन हुआ, जिसको मैं मूल्य ह्रास बोलती हूँ या तो शतमुख विनिपात बोलती हूँ, ये मूल्य ह्रास या मूल्यों का जो परिवर्तन हो गया, ह्यूमन वैल्यूज बदल गई पूरे की पूरी, इसका अगर अभ्यास करना है तो क्या क्या हुआ, जो सोशल स्ट्रक्चर था वो सोशल स्ट्रक्चर पूरा बिखर गया आफ्टर 47, आफ्टर पार्टीशन। पूरा मूल्य ह्रास लिटरेचर में कैसे आया वो भी हम बात कर सकते हैं। इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप मानविनी भवाई लो, पन्नालाल पटेल की, राही मासूम रजा की आधा गांव लो, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती या पन्नालाल पटेल की शॉर्ट स्टोरीज लो। ये शॉर्ट स्टोरीज आपको बताएगी कि हर क्षेत्र में कैसे शतमुख विनिपात की ओर हम लोग गए। अगर आप मां श्वेता देवी की अरण्यनो अधिकार या अग्निगर्भा जैसी नॉवेल लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये जो पॉलिटिकल समस्या जिसको हम बोलते हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, असल में ये सोशल समस्या है। और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम ये पूरा मां श्वेता देवी की जो 1084 रमाई, जो नक्सलवादी मूवमेंट का पूरा जन्म हुआ, उसके पीछे जो प्रॉब्लम थे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, वो सोशल प्रॉब्लम थे। पूरा जो हमारा समाज आफ्टर 47 बदला। आप अब्दुल बिस्मिल्लाह की जीनी जीनी बीनी चदरिया लीजिए, हिंदी वाले अगर है तो, आप कैसे भारतीय समाज व्यवस्था में उसके जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थे, पूरे आर्थिक माળखा कैसे टूटते चले गए, ये बात आपको राही मासूम रजा में भी मिलेगी और ये जीनी बीनी चदरिया में भी मिलेगी। लेकिन हम लोग ऐसे सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। अगर किसी को मॉडर्निज्म में इंटरेस्ट है तो हम लोग क्यों कामू, काफका और सार्त्र की ही बात करें? क्यों हम इंडियन लिटरेचर में एलियनेशन की बात क्यों नहीं कर सकते? इंडियन लिटरेचर में एब्सर्डिटी की बात हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जैसे अगर आपको करना है, एलियनेशन की बात करनी है मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, तो आप भालचंद्र नेमाड़े जो बहुत बड़े मराठी लेखक है उसकी कोशेटो लीजिए, शशि देशपांडे की लॉन्ग साइलेंस लीजिए, निर्मल वर्मा की वे दिन लीजिए या तो एक चिथड़ा सुख लीजिए, अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें लीजिए जिसको इंग्लिश में वेरी जनरेशन के नाम पे ट्रांसलेट हो चुकी है, सितांशु यशीश चंद्र की जटायु या शबरी जैसे पात्र जो कविता है वो लीजिए। और एलियनेशन इन इंडियन लिटरेचर, absurd feeling in Indian literature, you can talk about that, you can work on that. अगर आपको, अभी हम कंपैरेटिव लिटरेचर के दायरे से बाहर नहीं निकले, हाँ वो याद रखिए। अगर आपको पॉलिटिकल नॉवेल में काम करना है तो भारत में वैसे पॉलिटिकल नॉवेल बहुत अच्छी कम लिखी गई है, लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। जैसे राही मासूम रजा ने 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी हम पर इम्पोज की थी उसको सब्जेक्ट बनाते हुए कटराबी आरजू नाम की एक नॉवेल लिखी है। फिर श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी एवरग्रीन पॉलिटिकल नॉवेल
कैसे भारतीय प्रजा के खून में भ्रष्टाचार है, वो बात श्रीलाल शुक्ला करते हैं। फिर मन्नू भंडारी 1979 में महाभोज लेके आते हैं, और ये 3 नोवेल हमें पूरे का पूरा भारतीय जो पॉलिटिक्स का जो चेहरा है वो चेहरा दिखाता है। ये तीनों नॉवल दिखाती है। हम लोग पॉलिटिकल पक्ष की बात नहीं करते, पार्टी की बात नहीं करते। एक में कटोकटी है, दूसरे में भ्रष्टाचार है, तीसरे में टूटते हुए सब स्ट्रक्चर है। तो ये बात हम पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को सामने रख के ये बात कर सकते हैं अगर वी आर इंटरेस्टेड। अगर आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म, इस पे ये कैसे पूरे वर्ल्ड के इश्यू पे काम करती है। हर प्रजा एक सपना देखती है, कुछ अच्छा होगा ऐसा सोचती है, नए नायक को लाती है, और हर बार प्रजा के पक्ष में सिर्फ निर्भ्रांति ही आती है। ये बात जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म करती है। लेकिन एनिमल फार्म को पढ़ने के लिए पहले आपको जार शासन, फिर रेड रिवॉल्यूशन, जो बोल्शेविक क्रांति जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसको पूरे के पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के बारे में ये नोवेल आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी। दूसरी एक इतनी ही अच्छी पॉलिटिकल नोवेल जिसको मैं बोलूंगी, खालिद हुसैनी की, जो अफगानिस्तान के राइटर है, उसकी द 1000 स्प्लेंडिड सन्स। हम लोग सोचेंगे कि रशियन राजक्रांति तो दूर की बात है, मुझे तो करंट टॉपिक चाहिए, तो दिस इज द करंट टॉपिक। द 1000 स्प्लेंडिड सन मेरे और आपके आज की बात करती है। तालिबान कोई दूर के भूतकाल की बात नहीं है, अभी की बात है। तो कैसे 1978 में रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया, कैसे अमेरिका ने रशिया को निकालने के लिए मदद की, और कैसे बाद में तालिबान आए। प्रजा हर बार कैसे सपना देख के बाद में निर्भ्रांत होती चली गई। ये अगर अभ्यास कर तो हम लोग पॉलिटिकल नोवेल पे अपना संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1084 भी पॉलिटिकल नोवेल ही मैं उसको बोलूंगी, क्योंकि उसमें नक्सलवादी मूवमेंट है, लेकिन उसमें आपको इकोनॉमिक और सोशोलॉजिकल अप्रोच भी आजमाना पड़ेगा। ये पार्टीशन पे भी आप काम कर सकते हैं। पार्टीशन पे इतना सारा लिखा गया है कि आप कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान लीजिए, आप राही मासूम रजा की आधा गांव लीजिए, आप कुर्तलैन हैदर की आग का दरिया लीजिए, ट्रेन टू पाकिस्तान आप लीजिए। इतनी सारी शॉर्ट स्टोरीज है, कुछ 200-250 शॉर्ट स्टोरीज है, ड्रामा है, पोएट्रीज है, और संस्मरण कथा भी है। जैसे 2 तो मुझे पता है, एक गुजराती में है, कमलाबेन पटेलनी मूल सोता उखड़ेला, और एक उर्दू में है, बेगम अनीस किडवाई की आजादी की छांव में। कमलाबेन ने लाहौर में काम किया था भारतीय नारियों को वापस लाने का, बेगम अनीस किडवाई ने दिल्ली में काम किया था मुस्लिम नारियों को वापस भेजने का। इन दोनों का अप्रोच, दोनों का जो अनुभव जगत है, इन दोनों के बारे में आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच दोनों लेके। तो अभी संस्कृत वाले और हिंदी वाले और गुजराती वाले को जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो टॉपिक पे जाते, क्योंकि मेरा टाइम भी खत्म होने जा रहा है। माइथोलॉजी और लिटरेचर, ये भी कंपैरेटिव स्टडी है। कोई एक कैरेक्टर लीजिए और उसके बारे में हमारे सर्जक ने क्या आधुनिक इंटरप्रिटेशन किया, आधुनिक अर्थघटन क्या किया, वो आपका अभ्यास का विषय होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ मिथ का आपको याद ही नहीं करनी है, लिस्टिंग नहीं करनी है, न्यू इंटरप्रिटेशन क्या है वो आपको करना है। तो रामायण में शबरी, जटायु, हनुमान के बारे में सितांशु यशस चंद्र क्या बात करते हैं, इसके ये कैरेक्टर लेके वो मॉडर्न सेंसिटिविटी की बात कैसे करते हैं, एलियनेशन की बात कैसे करते हैं, वो आपको देखना है। कर्ण, द्रौपदी, ये इनको लेके पूरे भारत में सब राइटर्स ने लिखा है।
जैसे खांडेकर की ययाति ले लीजिए, गिरीश कर्नाड નું नाटक ययाति ले लीजिए, मुंशी पुत्र समौड़ी का ययाति ले लीजिए, और कांत का जो ययाति ले लीजिए, और आप कंपैरेटिव स्टडी करिए। एक ही ययाति है और चार चार फॉर्म है, चार चार भाषा है। इंटरटेक्सुअलिटी जिसको बोलते हैं, अंतर्कृतित्व, ये इंटरटेक्सुअल स्टडी आप इन सब कैरेक्टर को लेके कर सकते हैं। माधवी लो, भीष्म साहनी ने माधवी नाटक लिखा, द्रौपदी तो कितने सारे लोगों ने लिखा है, गांधारी, सीता, उर्मिला, दमयंती, इन सब कृति में आपको आज का नारीवादी सुर सुनाई देता है। नारी का कोई सनातन जो प्रॉब्लम है वो सुनाई देता है। फेमिनिस्टिक अप्रोच से आप इन माइथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। फेमिनिज्म के बारे में लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन रिपीटेशन करते हैं, वही बात फिर से जो हो चुकी है। न तो हम सेकंड सेक्स पढ़ते हैं, न हम वर्जीनिया वुल्फ का अ रूफ फॉर वंस ऑन पढ़ते हैं, और हम जो बात हो चुकी है वही बात लिख के काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तस्लीमा नसरीन, राजेंद्र यादव, कमला भसीन, गौरी देशपांडे, ये हमारे भारत में लिखने वाले फेमिनिस्टिक राइटर्स है। इन लोगों ने क्या नया लिखा, इसमें आप विभूति को भी ऐड कर सकते हैं और सोनल शुक्ल को भी ऐड कर सकते हैं। अभी जब दुनिया WL विमेन्स लैंग्वेज की बात कर रही है, गाइनो क्रिटिसिज्म की बात कर रही है, तभी हम सिर्फ सोशल प्रॉब्लम की ही बात कर रहे हैं। हम फील्ड वर्क करके, कोई किसी ने ये गाइनो क्रिटिसिज्म या वुमेन्स लैंग्वेज पे बात करने की आज तक किसी ने नहीं किया है। मैं सिर्फ गुजराती की बात नहीं करती, मैंने इंग्लिश में भी नहीं देखा है। कविता का क्षेत्र पूरा बच जाता है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं बहुत सारा, लेकिन एक क्षेत्र में ले लेती हूं, वो है कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन लिटरेरी टेक्स्ट एंड सिनेमा। सिर्फ दोनों के स्टोरी दे देने से आपका कंपैरिजन नहीं हो जाता है। एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ये चार संज्ञा के पास आप जब तक नहीं जाते तब तक आप फिल्म की बात नहीं कर सकते हैं। फिल्म के पास ध्वनि है, संगीत है, गीत है, डायलॉग है और अभिनय है, ये सब लिटरेरी टेक्स्ट के पास नहीं है। तो ये सब जो नहीं है, फिर भी काफी बार ऐसा होता है कि लिटरेरी टेक्स्ट फिल्म से ज्यादा अच्छी होती है, या तो फिर कभी कभी जैसे सत्यजीत रे जैसा डायरेक्टर मिलता है तो चारुलता जिस स्टोरी पर से बनी नष्ट नीड टैगोर की, उससे चारुलता बेटर है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, गुजराती पढ़ते हैं, तो चुनीलाल मडियानी अबू मकराणी पर थी मिर्च मसाला बनी, प्रेमचंदनी सदगति पर थी सत्यजीत रे ने सदगति बनाई, नष्ट नीड पर से सत्यजीत रे ने चारुलता बनाई, ओ हेनरी ने द गिफ्ट ऑफ मजाई पर से ऋतुपर्ण घोष ने रेनकोट बनाई, टैगोर की घरे बाहिरे से घरे बाहिरे बनी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय की पथेर पांचाली से पथेर पांचाली बनी, धर्मवीर भारती की सूरज का सातवां घोड़ा पर से श्याम बेनेगल सूरज का सातवां घोड़ा बनाते। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक और मैं बताना चाहती हूँ कि रूपांतरण दूसरी तरह से भी हो सकता है, जैसे विशाल भारद्वाज करते कि हैमलेट लिया और हैदर बनाई और उसमें कश्मीर की पूरी राजनीति डाल दी। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, डॉक्टर जिवागो, सन्स एंड लवर, लस्ट फॉर लाइफ, टू सर्व विथ लव, इट्स एंडलेस लिस्ट। आप काफी सारे सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, ये 2-3 घंटे का काम है, इतने कम समय में काम, मतलब मैं जितना बता सकती हूँ इतना मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। આભાર શરીફાબેન. આપણે એટલા બધા વિષયો એટલા બધા આપણે આવડી નરેશભાઈ ઇકો આવે છે, એ શેના કારણે? બીજા કઈ ડિવાઇસમાં ચાલુ છે? ના, અહીંયા નથી.
કોઈ વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન છે? સર હું કોમ્પ્યુટર સાયન્સ પણ હું જોઈન કરવા માંગુ છું, થતું જ નથી. તો શું કરવાનું છે? એના માટેની લિંક અલગ છે બેન. મેં લિંકમાં જોઈન થતું જ નથી. હા, આ લેંગ્વેજ માટેનું છે. એ આજે પ્રશ્ન આવ્યો છે તો વિદ્યાર્થીઓની મર્યાદામાં એ લોકો સામેલ કરી શક્યા છે, એટલે એ આવતીકાલ સુધીમાં હલ કરી નાખશું. આજે આમ પણ સેશન પૂરું થાય છે. બરાબર, એટલે એટલા માટે કોમર્સ મેનેજમેન્ટ સાયન્સમાં સૌથી વધારે વિદ્યાર્થીઓને સામેલ નથી કરી શકાયા. એ કંઈક સોફ્ટવેરનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો, એ થાય. પણ આ રેકોર્ડિંગ રીતે ઉપલબ્ધ છે, એટલે તમને મળશે તો ખરું. ઓકે, થેન્ક યુ સર. આ વિષયને લઈને કોઈને પ્રશ્ન હોય તો જરૂર પૂછો. ગુજરાતી, હિન્દી અને ભારતીય સાહિત્યમાં કેવા કેવા જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણથી જુદી જુદી પદ્ધતિ અપનાવીને સંશોધન કરી શકાય એ માટેની બહુ જ વિગતવાર માહિતી અને કેટલા બધા નામો લેખકોના, કૃતિઓના અને એરિયાના આપણી સામે મૂકી આપ્યા છે. એ માટે યુનિવર્સિટી વતી આ આખું આયોજન સાથે સંકળાયેલા મિત્રો વતી અને વિદ્યાર્થી વતી શરીફાબેનનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આ સાથે આવતીકાલે આપણે મળશું સમયસર. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Students, this recording will be made available to you very soon. Thank you very much.